morning, student. Students, in the previous class, we have started our chapter 3, Motion of the Earth from Geography section. Students, we have already learned that we have already discussed about our topic, rotation. And we knew that rotation is the changing of rotation is the process of changing day and night. Today we will discuss about all of these topics, effects of different speeds of rotation, what would happen if the earth stopped rotating, what is revolution, this is related with rotation, and our new topics today is revolution and effects of earth's revolution. So students, let's start. Open your page number 114. So we knew that what is rotation? The changing of day and night. The process of changing day and night is called rotation. And today we will come to our first point: effects of different speed of rotation. What is effect of different speeds of rotation? The Earth, let's start. The Earth rotates at a speed of 1600 km per hour at the equator. Equator पे the Earth is this is called the equator. तो 1600 किलोमीटर पर आवर एट इक्वेटर, 1600 किलोमीटर पर आवर. And 1200 kilometer per hour at 45 degree north and 45 degree south. This is the north pole and this is the south pole. 90 degree north pole and it's 90 degree south pole. And here is 45 degree north pole and this is the 45 degree south pole. At the 45 degrees north pole and at the 45 degrees south pole, and its speed is 1200 km per hour. 1200 km per hour. You can clear from this figure. Well, this is the equator and this is the poles. You will see the 45 degree north, 1200 km per hour at 45 degree north and 45 degree south. And the speed further decrease at the poles. Speed धीरे-धीरे decrease होने लगती है. पोल से यहाँ तक जब पहुँचती है ये और उसकी स्पीड वो धीरे धीरे पोल की तरफ जाते जाते वो डिक्रीज होने लगती है और कम होने लगती है. ठीक है. This difference in speed causes the bulging of the earth at the equator and flattening at the poles. तो इसलिए ये डिफरेंट थोड़ी सी स्पीड की डिफरेंट की वजह से यहाँ से थोड़ा सा फ्लैटिंग रहती है. झुकी हुई पृथ्वी क्यों है, गोल क्यों है, यहाँ पे थोड़ी सी झुकी हुई क्योंकि यहाँ पे स्पीड उसका जो है रोटेशन की यहाँ पे कम हो जाती है. ठीक है. It also affects the circulation of ocean currents and general circulation of the atmosphere. It causes deflection of ocean currents and winds. ये ocean currents और winds को भी इफेक्ट करता है. उसकी जो स्पीड है वो इफेक्ट करता है. As the earth rotates from west to east, the sun, the moon and other stars seems to move from east to west. अगर if the earth rotates east to west,
अगर अर्थ रोटेट्स करता है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ तो सन मून एंड अदर स्टार्स मूव ऐसे लगेगा कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट साइड मूव करते वो दिखेंगे. The concept of sunrise and sunset also give us a sense of direction based on the position of sun as viewed from earth. The sun rays are vertical at noon and slanting in the morning and evening. Sun rays vertical सीधे पड़ते हैं sun के rays मून में मतलब आफ्टरनून में एंड स्लैंटिंग मतलब झुके हुए रहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में. ठीक है, तो थोड़े से डायरेक्ट नहीं पड़ते हैं, तो इसीलिए वो उसकी जो रेस की जो इफेक्ट है हम लोग पे कम, मॉर्निंग में थोड़ा सा कम धूप होती है ना, एंड नून होते होते मीन्स 12-1-2 बजते वो डायरेक्ट हमारे पे पड़ती है, तो वो वर्टिकल होती है. तो इसलिए ये पोजिशंस उसके स्पीड के अकॉर्डिंग ये सिचुएशंस क्रिएट होती है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय ऑब्जर्विंग योर शेडो ड्यूरिंग द डे टाइम. आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो अपने शेडो, डे टाइम पे आपका शेडो कैसे होता है. जैसे जैसे धूप कम ज़्यादा होती है वैसे वैसे शेडो भी हमारे छोटे बड़े होते हैं, तो इस तरह से भी आप अपने उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. सो कॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड ऑफ द रोटेशन द इफेक्ट ऑफ दिस है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल जो होते हैं वो स्लैंटिंग, थोड़े से स्लैंटिंग हो जाते हैं, यहाँ पे आके वो मूवेबल हो जाता है, थोड़े से झुके हुए रहते हैं एंड यहाँ पे सीधे रहते हैं. यहाँ पर उसकी जो स्पीड है 1600 किलोमीटर पर आवर है इक्वेटर पे, तो यहाँ पे उसका जो रोटेशन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये बढ़ रहे हैं, फैले हुए रहते हैं. ठीक है, एंड सो वी आर क्लियर अबाउट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट ऑफ स्पीड्स, है ना. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग. What would have happened if the earth stopped rotating? There is no motivation on sun, है ना. sun तो वो एक जगह का स्थिर है, वो तो मूव करता नहीं है. मूव कौन करता है? We have studied in our next class ना, अर्थ मूव करता है, अर्थ रोटेट करता है. तो जो अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या हो? यू कैन इमेजिन ना, अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जो सन के पास का जो अर्थ का पार्ट है वो ऑल टाइम हॉट एंड हमिड रहेगा, बहुत ही गर्मी वहाँ पे रहेगी और हमेशा वो प्रकाश वाला रहेगा. एंड जो पार्ट अर्थ से दूर है, अवे फ्रॉम द अर्थ जो पार्ट है पृथ्वी का, क्योंकि मूव नहीं करेगा तो वैसे तो हमेशा बना रहेगा, है ना. एंड जो पार्ट तो वहाँ पे हमेशा अंधेरा बना रहेगा एंड वहाँ पे हमेशा ठंडा कोल्ड वहाँ पे बना रहे, क्योंकि सन रेज वहाँ पे पहुँचेगी नहीं. तो इस तरह से जो मूवमेंट, अगर रोटेशन नहीं होता है, अगर वो पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी सन के पास, यू कैन सी इन द in this picture you can see ना, सन है उसके पास, ये यहाँ से ये पृथ्वी यहाँ से इतनी दूर है तो इतना रोटेट करते करते और पास आती है, तो इतना सन इनके पास जाता है एंड ये रोटेट करते करते अगर यहाँ आती है तो वो सन की इतने पास आ जाती है एंड यहाँ पे इक्वेटर बीच में पूरी सन के पास वो होती है, जो पार्ट सन के पास होता है देखिए है ना. एंड इस तरह से आपको एरो के थ्रू फ्लैग्स के यहाँ थ्रू आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सा अर्थ का पार्ट जो है वो सन के पास आते आते वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज नियर टू द क्लोज टू द सन, है ना. एंड जो अवे है, ये पार्ट जो सन से अवे है तो वो अंधेरे में, यहाँ पे लाइट है, इतना ही पार्ट वो अंधेरा में है, मीन्स कि वो सन से दूर है. फिर इतना पार्ट दूर हुआ, इतना दूर हुआ, इतना दूर हुआ सन से, एंड दिस यहाँ पे आप देखोगे कि बस इतना ही पार्ट वो सन के क्लोज है, बाकी सारा पार्ट जो अर्थ का है वो, क्योंकि मूवमेंट करते जब वो मूव करता है तो सन से ऐसे इसकी मूवमेंट होती है. ठीक है, आप लोग देख रहे हो, इस पिक्चर से आप लोग को क्लियर होगा कि ये मूवमेंट अगर ना हो तो पृथ्वी यहीं पे बनी है, तो जो पार्ट यहाँ पे है वही सन से राइज, सन की राइज यहाँ पे जाएगी, जो अर्थ के जो सन से अवे है, जो दूर है पृथ्वी का जो पार्ट अर्थ का, वो वहाँ पे हमेशा कोल्ड और डार्कनेस बनी रहेगी. ठीक है, तो ये अफेक्ट होगा अगर रोटेट करना बंद हो जाए. तो
रोटेटिंग करना स्टॉप कर दे तो ये अफेक्ट अर्थ पे होगा, हमारी लाइफ पे होगा. लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ इफ इट स्टॉप्स रोटेटिंग. लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगा ना, एकदम पूरी गर्मी में भी कोई नहीं रह सकता एंड पूरी क्योंकि सारे जो उसकी प्रोसेस है लाइफ के सर्वाइव के लिए, वो सारे प्रोसेस ही बंद हो जाएंगे अगर रोटेशन बंद हो गया तो. क्योंकि सारे जो हैं वो प्रोसेस बहुत ही कंपल्सरी होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लाइफ के लिए. द फेनोमेना ऑफ डे एंड नाइट वुड डिसअपियर. डे एंड नाइट का जो फेनोमेना है, वो प्रोसेस है, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, वो अदृश्य हो जाएगा. Portion of the earth facing the sun would experience continuous sunlight and warmth, while the portion away from sunlight would experience night and low temperature. है ना, जो पोर्शन उसके सन के पास होगा वो हमेशा हॉट एंड सनलाइट वाला रहेगा, हमेशा एकदम गर्म और सनलाइट से कंप्लीट रहेगा. और जो अवे है सनलाइट से, अवे है जो अर्थ का पोर्शन, वो वहाँ पे हमेशा डार्कनेस और लो टेम्परेचर कंटिन्यूस रहेगा. तो जो डे एंड नाइट का जो फेनोमेना है वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. तो इस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर वुड मेक अर्थ इनहॉस्पिटेबल एंड अनसुटेबल टू लाइफ. तो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, कूल टेम्परेचर एक्सट्रीम हुआ तो हॉट टेम्परेचर एक्सट्रीम जो है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो अनफिट होता है. वहाँ पे लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है. Now, so you can see that if the earth stop rotating, तो how can we effect of this, है ना. हमने देखा ना कि हमको क्या इफेक्ट इससे हो सकता है, लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. But now we will come to our next topic, revolution. Today's our topic is revolution. The annual movement, the rotation is the day and night process. Changing process of day and night is called the rotation. And annual changing, है ना, seasonal changing, annual changing process is called the revolution. The annual movement of the earth around the sun along a fixed path is called revolution. The fixed elliptical path along which the earth revolves is called its orbit. The earth revolves along its orbit of approximately 965 million kilometer length at a speed of 29.6 km per second. 29.6 km per second की लंबाई से उसकी स्पीड होती है और रिवॉल्व करता है अप्रोक्सीमेटली 965 मिलियन किलोमीटर लंबा वो रिवॉल्व कर सकता है और 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड रहती है. इट टेक्स 365 डेज 5 hours 48 minutes 46 seconds approximately 365.5 days to complete one revolution. How many times they take? 365.5 days to complete the one revolution. For the sake of convenience, 365 days is taken as a single year. 365 days is taken as a single year. 1 year के लिए 365 days को count किया जाता है. The extra quarter of the day adds up to make a whole day in a period of 4 years. And half जो है 365.5 days जो है उसको वो हाफ करके क्वार्टर जो फोर्थ पार्ट है उसको पर एवरी 4 years के बाद उसको उसी में मर्ज करके उसको एक साल एक दिन बनाया जाता है. 1 day को कंप्लीट किया जाता है. तो एवरी 4 years लीप ईयर आप लोग जानते हो ना, एवरी 4 years आफ्टर एवरी 4 years वी हैव फेस लीप ईयर्स, है ना. तो वो जो एडिंग वाला जो एक ईयर होता है उसको लीप ईयर कहते हैं. तो वो लीप ईयर का डेज कितना होता है 1 year का 366 डेज होता है क्योंकि वही क्वार्टर जो 1.5 होता है उसी को मर्ज करके पूरा 1 day बनाया जाता है. तो आफ्टर 4 years it makes 366 day. The extra quarter of a day adds up to make a whole day in a period of 4 years. Thus we have a year with 366 days every 4 years. It is termed as a leap year. February 29 is an additional day added to compensate the
डिफरेंस ऑफ द कॉमन ईयर 365 1 and 4th, सॉरी 1 and 4th है वो 365 1 and 4th उसको मर्ज करके पूरा 1 डे आफ्टर 4 years वो बनता है. The year 212 is a leap year. 212 is a leap year. Can you say which was the first leap year of the century? When will you again experience a leap year? फिर आपका अगेन लीप ईयर कब आएगा और पहला लीप ईयर कौन सा रहा होगा, ये आप लोग सर्च करिए. ठीक है, हाँ, यू कैन सर्च दिस एंड फाइंड आउट दिस. Effects of Earth's revolution. Now we will come to our last point today is effects of Earth's revolution. The revolution of the Earth along with its inclined axis determines the primary distribution of the sun's energy throughout the Earth. Its primary effect is a occurrence of different seasons throughout the Earth. उसका जो पहला इफेक्ट है, सबसे पहला इफेक्ट रिवोल्यूशन का क्या होता है, जो डिफरेंट सीजनल चेंजेस आती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन की वजह से जो हम फिल कर पाते हैं, सारे अलग अलग सीजन्स को फिल कर पाते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. एवरी सीजन्स वी कैन फील अबाउट ड्यू टू द रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग, अदरवाइज हम लोग एक ही तरह के एटमोसफियर में, एक ही तरह के जो वहाँ आसपास का जो हमारा एटमोसफियर है उसी में हम लोग, और वैसे ही हम लोग को रहना पड़ता अगर रिवोल्यूशन ना होता तो. The varying lengths of day and night throughout the earth are a result of this. तो इसकी वजह से रिवोल्यूशन की चेंजिंग वजह से जो डे एंड नाइट का भी जो प्रोसेस होता है उसमें भी चेंजिंग हम फील करते हैं, उसके भी जो कारण क्या है वो रिवोल्यूशन है. तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ओवर. वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन in next class. Thank you.